we have seen some problems of cash flow. Okay, we'll just wait 2 minutes. Someone of join this and then we'll start. So just keep your notebook, pen, pencil, scales, calculator and all, because we have solved the problems, you know. It's okay. Have you seen my screen? Hello. स्क्रीन दिसतंय का सगळ्यांना? हो. Okay. Just read this. Just read this only. Yes.
Okay. So we have seen this problem. First, the following are the balance sheet and income statement of OHM Limited. Here we have seen 2 years information. Okay. Liability side 1 year, 2 year, whatever means half yearly, एक 6 ते 31/12/6, and asset is given 1/1/2006 to 31st/12/2006. 6 month information we have given. And in liability side, share capital, profit and loss account, creditors, outstanding expenses, provision for tax, provision for depreciation on building. And asset sides, we have seen land, building, current asset, cash, debtors, stock, advance. Okay. Now we have seen profit and loss account. Okay. We have given profit and loss account statement. And it's given 31st March 2006. Okay, read carefully. Here we have seen the information 1st June 2006 to 31st/12/2006. Okay, and the profit and loss given whole year March 2006. Got it? So in profit and loss account, we have seen the cost of sales, the wages and salaries, the gross profit, operating expenses we have seen, depreciation, provision tax and net profit, and proposed dividend. Then in credit side, gross profit, profit on sale building, and net profit, right? Next. We require to prepare cash flow statement. Okay. On the given information, we require to prepare cash flow statement. So let's prepare. So first we have, yesterday we have seen, first we have calculate profit and loss account. Okay. So here solution is here. First we have seen some provision for tax account. Okay. Then building account. Then we have prepared depreciation on building account. Okay. Then adjusted profit and loss account. We need to prepare adjusted profit and loss account. And after that, we have prepare cash flow statement of OHM Limited for the year ending 31st March 2006. Okay. So let's we prepare small accounts because those accounts we require to show in cash flow or earning profit, right? So here we have prepared first provision for tax account. Just make on your copy fast. Provision for tax account, building account, depreciation on provision on building account, adjusted profit and loss account, and last में बनाइए cash flow statement of OHM Limited for the year ended 31st March. बनाइए फटाफट. Provision of for tax account, particular rupees, building account, particular rupees, depreciation on building account, adjusted profit and loss account, and cash flow statement. Are you prepared? हो गए हो तो बताइए फट से. Yes, हो गया. Yes or no? Jayashree? बना रही हूँ.
डन मैम। हो गया सबका? ऊपर आइए। यस मैम। यस, गुड। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में सारी चीजें दी हुई है ना, वो एक एक करके एक एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल। ठीक है, पहले बैलेंस शीट का ले लेते हैं। शेयर कैपिटल कहाँ लेना पड़ेगा, लेना है कि नहीं लेना है शेयर कैपिटल? यस, आएगा कि नहीं आएगा? शेयर कैपिटल हम लोग कहाँ पे लेंगे? यस, नहीं पता? शेयर कैपिटल हम बाद में लेंगे, वो उसे कैश फ्लो में ले सेकंड में दिया होगा तो, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच इट इज। पहले साल हमें दिया है 75,900, सेकेंड ईयर में दिया है 81,900। ठीक है, लेना है कि नहीं लेना है? यस, इसके पहले सॉल्व किए होगे ना, हमने सीखा होगा, ये नहीं सीखा है क्या? नहीं हुआ है किसी का कैश फ्लो हुआ है स्टेटमेंट? पर अभी याद नहीं है। अरे कोई बात नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,500 एंड 81,900। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने जो डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना आ रहा है देखिए। पहले ही साल में कितना था, 75,900। दूसरे साल में कितना है, 81,900। डिफरेंस कितना आ रहा है? 6,000 का डिफरेंस आ रहा है ना? 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। यस। तो ये कहा, यस, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और ये एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आ जाइए एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम लोग बैलेंस लेंगे 75,900। 75,900 क्यों लिया हमने? क्योंकि ये 116 मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है और 31 का ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ है, डेबिट में है, इसलिए P&L अकाउंट के एडजस्ट, P&L अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट के कहाँ पे आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में बैलेंस BD आएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा एज अ बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, दोनों को मेंशन करिए। ओपनिंग को क्रेडिट में, क्लोजिंग को डेबिट में लाइए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स, वो हम कैश फ्लो में लेंगे, उनका जो भी है ये करके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी हम उसी में दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या दिया है, ये भी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कितना है, ओपनिंग में 6,000 है और क्लोजिंग में 6,600 है। सेम करिए, आ जाइए प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट में। ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे कितना दिया है, एक मिनट ये देखने दीजिए, 6,000 और 6,600। अभी P&L अकाउंट में जो दिया है ना प्रोविजन फॉर टैक्स, वो हमें वहां लेना होगा। यहाँ पे जो दिया है बैलेंस शीट में है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स 6,000 6,600,
ये कब का दिया है, एक एक 1 जून का से 31/12 का, और यहाँ पे जो दिया है 31/3 का P&L में, तो ये हम उठा के वहां लेके जाएंगे, ठीक है। 44,000 कहाँ पे, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये 44,000 प्रोविजन फॉर टैक्स। और कुछ आइटम रह गया है क्या, डिविडेंड ये भी लेना है, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर बिल्डिंग 60,000 एंड 66,000, ठीक है। तो हमने बिल्डिंग अकाउंट भी बनाया है, बिल्डिंग अकाउंट में भी हमें शो करना होगा। एक मिनट, बिल्डिंग अकाउंट में शो करना है प्रोविजन फॉर बिल्डिंग, हाँ। 60,000 एंड 66,000 ये दिया है जून का, और ये है दिसंबर का, ठीक है। तो हमने जो डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ है उसमें डिप्रिसिएशन ऑन प्रोविजन ऑन बिल्डिंग अकाउंट, उसमें लिखिए टू बिल्डिंग, सॉरी बैलेंस 66,000, और इधर डेबिट का क्रेडिट में लिखिए, क्रेडिट का डेबिट में लिखिए, मतलब ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट। सॉरी, ओपनिंग क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग का डेबिट में आएगा, लिख लिया। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट। यस। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। यहाँ पे अभी एसेट साइड में आ जाइए। एसेट में क्या दिया है, लैंड 24,000 एंड 48,000। तो हमने यहाँ पे लैंड अकाउंट बनाया है क्या, बिल्डिंग अकाउंट बनाया है, लैंड अकाउंट नहीं बनाया है। क्यों बिल्डिंग अकाउंट क्यों बनाया है, क्योंकि वहाँ पे डिप्रिसिएशन था, और लैंड का हम डायरेक्ट कैश फ्लो में शो करेंगे, ठीक है। सो लैंड लेना नहीं है। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग का बनाया है 1,80,000 एंड 2,88,000। तो ओपनिंग का 1,80,000 है, क्लोजिंग का 2,88,000 है। बिल्डिंग अकाउंट में आइए, बिल्डिंग अकाउंट में क्या है, लाइबिलिटी साइड है, तो इसलिए ओपनिंग जो है वो एसेट साइड देख रहे हैं ना हम, और अपोजिट जाएंगे, राइट, अपोजिट जाएंगे, राइट। सो यस। डेबिट है तो वो क्रेडिट डेबिट में 2,88,000 क्रेडिट में आएंगे, क्लियर। नाउ उसके बाद क्या है, बिल्डिंग अकाउंट के बाद करंट असेट्स में कैश, डेटर्स, स्टॉक, एडवांसेस, ये सारे कैश फ्लो में प्लस माइनस करके, इंक्रीज डिक्रीज करके हम लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि इंफॉर्मेशन कंपनी सोल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ विच वाज ₹36,000, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ ₹36,000, तो बिल्डिंग में, बिल्डिंग के अकाउंट में कुछ लिखा है क्या 36,000 का, कुछ नहीं लिखा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑन, यस, P&L अकाउंट में प्रॉफिट ऑन सेल लिखा हुआ है, ठीक है। ये एडजस्टेड करके हमने निकाला है बैंक से। अभी यहाँ पे हमको बिल्डिंग जो है दिसंबर में उसका दिया है 1,80,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2,88,000। सो 2,88,000 माइनस 1,80,000, हाउ मच इट इज, 1,08,000, ओके। सो विल कैलकुलेट लेटर and adjusted same thing on building. नाउ P&L में आते हैं। P&L की कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा क्या, 9,90,000, नहीं आएगा ये,
कैश फ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि हमने कल आइटम देखा था हमें क्या क्या चाहिए। वेजेस एंड सैलरीज, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लेना है, और नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 कहाँ लेना है, लेना है कि नहीं लेना है। 1,10,000। फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमने एडजस्ट किया है, यहाँ पे नेट सेल आपका आता है 12,60,000। ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 40,000। डेप्रिसिएशन 30,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाना है, 30,000। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग सेल किया है, राइट। तो हमने ऑलरेडी पहले ही बैलेंस लिख लिया है, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन बिल्डिंग अकाउंट में आइए और वहां लिखिए क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में है तो पेंडल के डेबिट साइड में है तो बिल्डिंग के क्रेडिट साइड में लिखिए डेप्रिसिएशन 30,000। और कुछ आइटम है इसमें लिखा हुआ 60,000। 60,000 ठीक है। बिल्डिंग से रिलेटेड और कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट दिया है। हाँ, अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे हम शो करेंगे, नेट प्रॉफिट कहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा, राइट। कितना है नेट प्रॉफिट, 42,000। 42,000 यहाँ पे दिखाया नहीं है इन लोगों ने, क्यों नहीं दिखाया उसको। अच्छा सॉरी, हम लोग कैश फ्लो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हाँ। एडजस्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट इसका है वो, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। देन आपका प्रोविजन ऑन टैक्स अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल करिए पहले, 30,000 प्लस 30,000, 90,000, 90,000 माइनस 66,000, 24,000 आता है क्या, देखिए। आया 24,000 आया क्या, पहले सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्रोविजन ऑन बिल्डिंग अकाउंट क्लोज करिए, यस और नो। Yes, ma'am. ओके, नाउ अभी उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्लोज करिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्लोज करिए। ये हमने लिया था ना प्रोविजन फॉर टैक्स 44,000, प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ पे लिखा लिखा है हमने 44,000। देन बैलेंस शीट में हमने सॉरी बैलेंस शीट में हमने प्रोविजन फॉर टैक्स 6,000 एंड 6,600 है ना, ये दोनों था प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में इसे दिखा दीजिए, डेबिट का क्रेडिट में ओपनिंग और क्रेडिट का डेबिट में, कर लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे थोड़ा दिक्कत जाता है ना, मतलब बोर्ड में कैसा फटाफट एक साथ सारे अकाउंट्स ओपन करो और यहाँ का वहां कर लो, बट इट्स ओके, हमें करना तो पड़ेगा ही, नो इशू।
राइट। यस मैम, बोर्ड पे इजी जाता है। हाँ यस, बोर्ड पे इजी जाता है, बट इट्स ओके। हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, क्लोज करिए उसको। 44,000 प्लस 6,000 कितना आता है? 50,000। 50,000 माइनस 6,600, 43,400 आया। यस मैम। अभी आपको ये जो प्रोविजन है ना, पेंडल अकाउंट का प्रोविजन है 44,000 का, उसे आपको एडजस्टेड प्रॉफिट ऑन लॉस में दिखाना है। लेके आइए, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आइए। ठीक है, डेबिट साइड में लिखे उसको टू प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी, हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स 44,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको जो बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी, हाँ बिल्डिंग अकाउंट जो है, P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल 6,000। उसको भी आपको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये एरो देख रहे हैं ना, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑन बिल्डिंग 6,000। 6,000। ठीक है, हमने ये डिप्रिसिएशन ऑन प्रोविजन ऑन बिल्डिंग अकाउंट क्लोज किया। अभी देखो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अभी आपको 6,000 कैसे आया पता ही चला होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया है आपको कि एडजस्टमेंट में बोला है कि कंपनी सोल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल में कॉस्ट प्राइस ऑफ विच वाज रुपीज 36,000। तो उसमें से 36,000 में से क्या था, 30,000 जो था वो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन बिल्डिंग अकाउंट कितना था यहाँ पे 30,000। ठीक है, और बेचा कितने में, 36 में, मतलब 6,000 क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट में लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑन बिल्डिंग जो भी है 6,000। ठीक है, सेल का प्रॉफिट आया ना। और ये जो प्रॉफिट है ये हमने कहा दिखाया, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दो एंट्री की इसकी। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन बिल्डिंग 6,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री जो है आपका डिप्रिसिएशन का, P&L अकाउंट का। ठीक है, ये अकाउंट हमने क्लोज किया ना, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का। तो इसका जो 30,000 था, इसका सेकेंड एंट्री कहाँ पे करना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आया आपका 30,000। यस मैम। देन अभी क्या रह गया है, ठीक है, देन आपको इसका जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे भी दिखा दिया, एडजस्टेड प्रॉफिट में बिल्डिंग का 6,000। ठीक है, क्रेडिट साइड में बिल्डिंग का जो प्रॉफिट है, दो एंट्री लेने पड़ेंगे ना, एक प्रॉफिट एंड जो हमने ऑलरेडी ली है। ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमने क्लोज कर लिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट क्लोज कर लिया। अभी हम क्लोज करेंगे बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, यस। चलिए बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज करिए। अभी यहाँ पे जो हमने बिल्डिंग अकाउंट का डिप्रिसिएशन ऑन प्रोविजन ऑन बिल्डिंग अकाउंट है ना, 24,000 था। तो जो प्रोविजन हमने लिया है वो यहाँ पे भी आना है 24,000 बिल्डिंग अकाउंट में, राइट। इसे करिए और क्लोज करिए बिल्डिंग अकाउंट को, 24,000। ठीक,
करिए इसका टोटल कर लीजिए सारा अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट क्लोज करिए, डिप्रिसिएशन ऑन प्रोविजन ऑन बिल्डिंग समझ में आया क्या? देखिए जो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट हमने क्लोज किया था, इसका बैलेंस आया था 24,000, ठीक है। तो ये जो 24,000 था, इसका हमें दो जगह इफेक्ट दिखाना था। कहाँ पे? एक कहाँ पे आएगा? एक आएगा बिल्डिंग, यहाँ पे डेबिट साइड में है तो बिल्डिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन प्रोविजन अकाउंट 24,000, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ यस मैम। जाएगा? सेकेंड, प्रॉफिट हाँ, उसको हमने एडजस्ट कर, प्रॉफिट एंड लॉस। यस। चलो क्लोज करो, अभी सारे अकाउंट क्लोज कर लीजिए पहले। हो गए सारे अकाउंट क्लोज। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट क्लोज हो गया। बिल्डिंग अकाउंट का जो बैलेंस आया है, कितना आया है? बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस इसे भी हमें एडजस्टेड में डालना पड़ेगा जहां पे भी है। टोटल आया क्या? यस मैम। बिल्डिंग अकाउंट 1,80,000 एंड 2,88,000, यस। 1,80,000 एंड 2,88,000, यस। हाँ, देन ऑलरेडी हमने जो प्रॉफिट ऑन सेल था वो मेंशन कर दिया 6,000 P&L में एंड एडजस्टेड डिप्रिसिएशन में, सॉरी बिल्डिंग में, ठीक है। अभी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, सारे अकाउंट क्लोज कर दीजिए। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। आ गया? मतलब आएगा प्रॉफिट 1,10,000, इसका भी 1,10,000 आएगा इसका बैलेंस। आ गया? यस मैम। सारे अकाउंट क्लोज हो गए। प्रोविजन फॉर यस टैक्स, मैम। बिल्डिंग अकाउंट, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑन बिल्डिंग एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। नाउ अभी हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ओम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। यहाँ पे भी हमने पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया। अभी फर्स्ट में हम क्या करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अभी सबसे पहले लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर नॉन कैश आइटम, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया हमारा? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वही हमें यहाँ पे लेना है। कितना आया है? 1,10,000। 1,10,000। चलिए लिखिए यहाँ पे 1,10,000, ठीक है। यस मैम। नाउ अभी ऐड लेस जो भी है प्लस माइनस करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो हमने शेयर कैपिटल देखा था, वर्किंग कैपिटल जो भी है आया हमारा वो देखेंगे। अभी सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट के आइटम्स हम लेंगे डेटर, स्टॉक, ठीक है, जो भी है। तो बैलेंस शीट में हमें डेटर्स कितना दिखा रहा है पहले देखते हैं। डेटर्स, ठीक है, कितना है? 84,000
फर्स्ट 6 मंथ में, और उसके बाद का 93,000। तो अभी यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, मतलब लास्ट ईयर में कितना increase. था? हाँ, लास्ट ईयर में कितना था? 84,000। 84,000 माइनस 93,000, ठीक है। 9,000 क्या हुआ है? बड़ा है 9,000 से, मतलब क्या है? एसेट कम हुई कि Increase. है ना? तो इंक्रीज इन डेटर्स हुआ, तो इंक्रीज इन डेटर्स हुआ, इसलिए हम पहले इंक्रीज वाले आइटम लेंगे। देन स्टॉक, स्टॉक की क्या पोजीशन है कि स्टॉक जो था हमारा, स्टॉक लास्ट ईयर में 1 लाख, मतलब फर्स्ट 6 मंथ में कितना था? 1,32,000, और क्लोजिंग में कितना आया? 48,000, मतलब कम हुआ हमारा स्टॉक, राइट? तो कितना हुआ? 1,32,000 माइनस 48,000। इस यहाँ पे जो दिया है ना स्क्रीन पे फिगर, उस पे मत जाइए, आप खुद कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो 84. 84,000 आता है मेरा। 84,000 आया तो मैंने कहा लिया डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, वहां पे मेंशन किया डिक्रीज इन स्टॉक। आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं, इंक्रीज का और डिक्रीज का टोटल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एडवांसेस में क्या पोजीशन है? एडवांसेस, लोन एंड एडवांस की क्या पोजीशन है? तो लोन एंड एडवांस में एडवांसेस फर्स्ट 6 मंथ में 3,900 था, एंड सेकेंड क्लोजिंग में 4,500। 4,500 माइनस 3,900, इट इज 600। इंक्रीज हुआ है ना? ओपनिंग में कम था Yes. एंड क्लोजिंग में ज्यादा आ गया, तो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है मतलब 600 हमने इंक्रीज इन एडवांस करके लिखा है, ठीक है। नाउ क्रेडिटर्स का क्या पोजीशन है? क्रेडिटर्स में ये जो क्रेडिटर्स है यहाँ पे ओपनिंग में 1,20,000 एंड क्लोजिंग में 1,17,000। सो 1,17,000 माइनस 1,20,000, 3,000 का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना? इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? सॉरी, डिक्रीज हुआ है। डेबिट डेबिट Decrease. साइड है ना? यस, लाइबिलिटी साइड है। यस, तो डिक्रीज हुए हैं, मतलब अच्छी बात है हमारे लिए, तो क्रेडिटर्स कम हुए हमारे 3,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या पोजीशन है बैलेंस शीट में? अच्छा, फर्स्ट ओपनिंग में 12,000 था और क्लोजिंग में 24,000, मतलब 12,000 से इंक्रीज हुआ है ना? तो चलिए लिखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंडल में देखेंगे हम क्या है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका टोटल करिए और इसको नाम दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 1,10,000 में से जो माइनस है उसे माइनस करके, डेबिट है उसे प्लस है उसे प्लस करके निकालिए। 1,93,000 आता है क्या? कैसे करेंगे? 1,10,000 आता है क्या? पहले कैलकुलेट करिए, ऐसे ही मत लिखिए, ठीक है। आ गया क्या? Yes, ma'am. कितना आया? 1,93,400 आया। Yes, ma'am. गुड, 1,93,400। इसको नाम दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जो ऑपरेटेड है डेली बेसिस पे, स्टॉक, डेटर्स, एडवांसेस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ अब टैक्स पेड जो हमने किया है 43,400, है ना? यहाँ पे दिया है हमको P&L में शायद 43,400। टैक्स पेड प्रोविजन
यहाँ पे तो प्रोविजन फॉर टैक्स था 6000 और 600 का, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो निकाला वहां पे है क्या 40, हाँ ये देखिए जो आया ना प्रोविजन ऑन टैक्स, तो टैक्स पेड कितना आया 43,400, इसका एक इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए आइए नीचे में लिखिए 3,400, ठीक है। टैक्स पेड 43,400, टोटल निकालिए 1,50,000 आता है। 50,000। अब इसे हम आफ्टर, हमने देखिए जब हम कैश फ्लो प्रिपेयर कर रहे थे तभी हमने लिखा था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो टैक्स पेड करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आया है वो एक्चुअल में कितना आया है 1,50,000। तो इसे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ए देंगे हम, ठीक है। ये हो आपका नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। कितना था 1,93,400। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स कितना आया 1,50,000। नाउ Yes, ma'am. नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या परचेस किया है इन्वेस्टमेंट में, है ना। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज दिया था हमने, कल देखा था। परचेस ऑफ लैंड, देन परचेस ऑन बिल्डिंग, देन सेल ऑन बिल्डिंग, ठीक है। Building. यस, तो परचेस ऑफ लैंड 24,000 अभी इन्वेस्टमेंट में लैंड दिया है क्या, यस लैंड कितना दिया है 24,000, ठीक है। और ओपनिंग का 24 है, क्लोजिंग का, 48. हाँ सो 48, मतलब क्या है ज्यादा है, परचेस किया है एक्स्ट्रा। तो जो परचेस किया है 24,000 वो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन परचेस ऑफ लैंड 24,000, राइट। इंक्रीज है डिक्रीज है, In चलो नेक्स्ट परचेस ऑफ बिल्डिंग 1,44,000। परचेस ऑफ बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट देखिए आपका, है ना। बिल्डिंग अकाउंट में जो अब हमने पूरा टोटल मैच किया था उसके बाद जो आया 1,44,000, मतलब हमने 1,44,000 का क्या किया है परचेस किया है। एज पर बैलेंस शीट के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा बिल्डिंग कितना था 1,80,000 था, ठीक है। 1,88,000 माइनस 1,80,000, सॉरी कितना आया 1 lakh. जो हमने ऑलरेडी बिल्डिंग, आवाज ब्रेक हो रही है मैम. हाँ कितना आया 1,08,000 आता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी Yes. हमने बिल्डिंग, यस बिल्डिंग अकाउंट जो बनाया था, बिल्डिंग अकाउंट में कहाँ पे आया है डेबिट साइड में आया है ना। डेबिट साइड में आया है मतलब हमने एक्स्ट्रा परचेस किया है, प्रॉफिट यहाँ पे कैश फ्लो में दिखा ऑफ बिल्डिंग 1,44,000, राइट। दूसरा इफेक्ट, देन सेल ऑन बिल्डिंग, सेल ऑन 18,000, बिल्डिंग अकाउंट में है सेल ऑन बिल्डिंग 18,000।
उसे भी सेल ऑन बिल्डिंग 18,000 मैच करिए दोनों को और बैलेंस बाहर निकालिए, कितना आता है, इंक्रीज आता है, डिक्रीज आता है, दोनों का टोटल मैच करिए। ठीक है, उसमें से मतलब नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट इज कम्स 1,50,000। ठीक है, इसे आप नाम देंगे बी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी। नाउ थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस में से क्या क्या है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, शेयर्स में देखिए कितना है आपका शेयर्स, 1,80,000, 2,24,000, ठीक है, 2,00,000 42,000 माइनस 1,80,000 आपका शेयर आता है, ठीक है। Yes, ma'am. 42,000 इंक्रीज है डिक्रीज है। देन डिविडेंड पेड, डिविडेंड कितना पेड किया है हमने वो देखिए, डिविडेंड कहाँ पे आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखा था 36,000, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड जो हमें P&L अकाउंट में भी दिया है 36,000, यहाँ पे हमने कितना पे किया है डिविडेंड, 36,000, ठीक है। Yes, ma'am. कैलकुलेट करिए, दोनों का टोटल कितना आता है 6,000। इसे आप सी नाम दीजिए, मतलब ABCD, राइट। अभी हम कैलकुलेट करेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, तीनों का टोटल करेंगे, A+B+C, A+B+C, कितना आता है टोटल, 6,000. पूरा प्लस माइनस करके 6 तक, क्योंकि 1,50,000 माइनस 1,50,000 तो जीरो आया, और जो भी इनका टोटल आया वो 6,000, ठीक है। सो अभी ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, बैलेंस शीट में आएंगे, वहां पे दिया है क्या कैश एंड बैंक बैलेंस, वो चेक करेंगे। देखिए कैश कितना दिया है यहाँ पे, 30,000 ओपनिंग का और क्लोजिंग का 36,000, ठीक है। तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, Increase. चलिए मेंशन करिए यहाँ पे, ओपनिंग कैश लेना है, ठीक है। ओपनिंग हमने 30,000 लिया, क्लोजिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्लोजिंग जो कैश बैलेंस है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मैच होगा हमारा, है ना। Yes. सो ओपनिंग हमने कैश लिया 30,000, 30,000 प्लस 6,000, कैश बैलेंस जो आया 36,000, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमें दिया है कि क्लोजिंग बैलेंस जो है, ऐसे क्रॉस टैली करते हैं इस पे, ठीक है, कितना है हमारा 36,000, जो देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेट कैश फ्लो, ठीक है, मतलब जो कैश बैलेंस शीट में दिया है 36,000, हमने जो कैश फ्लो बनाया तो वो हमारा बैलेंस क्या हुआ, क्रॉस टैली हुआ, ठीक है। Yes, ma'am. यस, समझ में आया, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको क्योंकि
सब इसमें आ रहा है, बट प्रैक्टिस करने से आ जाता है। एक बार अगर हम स्टार्ट करें तो आ जाता है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम इजी है, इसे आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ट्राई करिए, तो हम कल देखेंगे इसको। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ओके। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बोलिए। कुछ है जो नहीं समझा आपको कैश फ्लो में? कैलकुलेशन कोई नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। मैंने मैम को बोला है, क्योंकि ये एएफएम का लेक्चर है और इसके लिए हमें 1 आवर सफिशिएंट नहीं है। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो हमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप 1 घंटे से ज्यादा बैठने की कोशिश करिए, मतलब 2 आवर्स मैंने बोला है। अगर जल्दी होता है तो नो इशू, नहीं हुआ तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। यस, ये सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस मैम। छोटा सा ही है, इसे आप ट्राई करिए। बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट कैश फ्लो ही बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस शीट पीएनएल दिया नहीं है, राइट? सो इसमें बहुत ही, और ये यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है आपको। ड्यूरिंग द ईयर 26,000 पेड एज डिविडेंड, प्रोविजन मेड फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है उसका। सिर्फ कैश फ्लो बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर भी बहुत इजी आएगा आपका। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैपिटल का कैलकुलेशन करके निकालना है। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, मतलब आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप स्टडी करोगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो। ये भी सिंपल है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। थर्ड का ये भी सिंपल है, इसमें भी आपको सिर्फ एडजस्टमेंट, तो ये भी आप कैश फ्लो बना सकते हैं इसका। ठीक है, यस मैम, ये डन। दो ही प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम लोग ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो हम कल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कुछ पूछना है प्रॉब्लम में? समझ में आया? ओके देन, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका, राइट? यस मैम। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? यस, हाँ। अक्षता, रूपाली, प्रतीक्षा, निकिता, यस और नो? रोहन, इसका आपका ऑफलाइन एग्जाम है, हाँ, इसलिए भी प्रिपेयर्ड, अभी एमसीक्यू नहीं होंगे। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस। थैंक यू मैम।